Assalamu alaikum everyone. Hope you guys are doing great. This is Nida, a little hushed, not a little hushed, actually, very rushed kind of an episode. This is our first episode for our live podcast series, and then I'm gonna take her live. How's everyone doing? Hi, Maheen. So, I was just communicating to my guest. Yes. Hi, Rabia. Please send me a request. Yes, I'm based in Pakistan, Osama. Okay. Let's add it. No voice? Really? अब आ रही है आवाज? अस्सलाम वालेकुम, Rabia. Walaikum assalam, Nida. How are you? I am running in all kinds of chaos today. I don't know what's happening. I can see Okay. that. Okay. So, assalamu alaikum, everyone, whoever has joined us today. My name is Nida Isfahan. I am the founder of this community, but Pakistan and a lot of other things that I try to do. Um, we have today Rabia Umair or Rabia Umair. Rabia? Rabia. It's Rabia. Rabia. Okay. Yes. Rabia is one of my community members. She has been हमारी बहुत अरसे की पुरानी seller रह चुकी हैं हमारी community के अंदर, मेरी community के अंदर. And we also had an opportunity कि हम राबिया के business को national television पे लेके गए थे through my platform, which is for women, and it was a wonderful experience because No doubt. उस शो से ही मैंने कोई दो चार चीजें वहीं पे बैठे बैठे खरीदी थी और बड़ा मजा आया था. And I'm still using those things. So a quick episode. And it was Um, one of its own experience, Nida. it was. It was. Yeah. Okay. So you need to turn off the fan because पंखे मैं भी बगैर Yeah. पंखे के बैठी हुई हूँ. That's straight way. Okay. Yeah. So while Rabia turns off the fan, I'll tell you what we're doing today. This is our live podcast series, which is called Women Who Build. And Women Who Build, just like the name suggests, Women Who Build, उन लोगों की, उन खवातीन की stories हैं who are entrepreneurs जो अपना business चलाती हैं या business start कर रही हैं या कर चुकी हैं या बंद भी कर चुकी हैं. It doesn't really matter, but the goal of this podcast is to talk to women जो आप जिनकी स्टोरी से आप लोग सब इंस्पायर हो सकें, and to sort of this give this message के despite being mothers, despite doing everything that we do, घर चलाने के साथ साथ business भी हम चला सकते हैं बहुत अच्छे से. So this is the purpose of this podcast. We only not only तो खैर नहीं बोलना चाहिए, but yes, I do intend कि हम ऐसी conversation के अंदर जाए, because although there's a lot of shows and a lot of conversation based podcasts that do happen, we have very less conversation on how do you start a business, how do you start a small business from Pakistan, from your home, with your skills, and even if you don't have those skills, how do you build those skills over time. So Rabia is one of the first ever guests, and I know कि हमारा बहुत मेरा बहुत different plan था basically इस episode के लिए. थोड़ा सा rushed हो गया और today because I also work full time and Rabia also had some commitments. So consider this a first, but a very fun and very spontaneous conversation. Rabia, Exactly. tell me everything that you do right now. क्या चल रहा है? How's your business going? But आप पहले खुद से मुझे बताओ, like what's your business about and कब start किया था? Nida, it started when COVID hit Pakistan. Okay? That's a story way beyond, I think, 4 years back, 2020. Yeah. Okay? And it came all of a sudden. कोई मेरा ऐसा plan नहीं था.
And just to give you a quick background of how it happened, 2019 में मेरी छोटी वाली बेटी पैदा हुई, ठीक है. और I've always been a very professional woman, ठीक है. I did my engineering from NED back in 2009. So basically I'm an electronics engineer, ठीक है. So I know questions होंगे कि how is this transition from being an engineer to a businesswoman, ठीक है. So before my marriage I worked full time in my own field for about a period of 5 years. फिर वो जो हम कहते हैं then marriage happened and then kids happened. So mashallah within a year I was blessed with my first child. और आई एम वो जो एक मदर्स नहीं होती, जो कैटेगरी होती है हु वुड लाइक टू सी देयर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देयर ओन आईज कि वो बड़े हो रहे हैं, वो उनकी तरबियत कर रही हैं. दो आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट माय ओन फील्ड, बट आई वांटेड कि आई कैन डू दिस लेटर ऑन एज वेल. सो दिस इज द टाइम फॉर माय किड्स एंड आई शुड गिव ऑल माय टाइम टू देम. तो वो बीच में एक ब्रेक ली, लेकिन वो भी इट वाजंट अ कंप्लीट ब्रेक दैट यू से इन द रियल टर्म्स, क्योंकि उसमें भी फिर ये हुआ कि सिंस वो हमेशा से एक काम करने की आदत है, वो कीड़ा होता है ना हमारे अंदर, तो वो फिर घर में बैठ के आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती, वो सिर्फ चूल्हे में खाना बना के और रोटी डाल के. सो देयर वाज समथिंग पिंचिंग मी फ्रॉम इनसाइड. सो जब मेरी बेटी तकरीबन बड़ी वाली 1.5-2 साल की हुई, सो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर and we used to provide computer related courses to different schools and teachers according to their own needs. हम वो formulate करते थे courses. अच्छा, उसके साथ मैंने तकरीबन काम किया for like maybe 3 years or so. फिर जब मेरी छोटी बेटी हुई, so my pregnancies have been like very very difficult, ठीक है. जो मेरे वो इनिशियल जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है निदा, इट्स लाइक आई एम टोटली ऑन बेड और आई एम नॉट अबाउट टू मूव, आई एम ओनली डूइंग वॉमिट्स. पानी भी आई कैन नॉट इवन इनटेक, पानी भी मुझे नहीं होता. तो ये मेरी दोनों प्रेगनेंसीज दोनों बच्चों के साथ ये हुआ. तो उसमें देन आई हैड टू टेक अ ब्रेक जब मेरी दूसरी बेटी हुई. अच्छा, अब दूसरी बेटी हुई, सो अगर टाइम है थोड़ा सा मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हम बात करेंगे कि आज मैं जहां बैठी हुई हूँ निदा, तो वो लगता बड़ा हम सबको बाहर से कि इट हैज बीन अ वेरी इजी एंड अ कंफर्टिंग वे आज हम जहां आके बैठे हुए हैं, बट इट्स नॉट दैट. पीछे हम जिन जिन चीजों से गुजरे होते हैं, तो आई थिंक वो सबको बताना बहुत जरूरी है, सो दैट बहुत सी ऐसी खवातीन है जो शायद कुछ करना चाहती हैं और वो ये सोच लेती हैं कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास सर्टेन बाउंड्रीज हैं, बट नो, दे कैन डू इट. यू शुड हैव द विल इनसाइड यू Yeah, टू कम अप एंड डू समथिंग इन योर लाइफ. अच्छा, उसमें फिर नेता ये हुआ कि माय डॉटर वाज हार्डली 29 डेज ओल्ड. तो रात में सडनली उसकी तबीयत खराब हुई. शी स्टार्टेड टर्निंग पर्पल. बिल्कुल उसकी स्किन, उसकी बॉडी वो जो थी वो हो गई और उसकी सांस उखड़ रही थी. शी वॉजंट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. इट वॉज लाइक 10 in the night or so. तो ऑब्वियसली वी वर लाइक क्या हो रहा है ना, क्यों उसको सांस नहीं आ रही. सो वी जस्ट रश टू द हॉस्पिटल. इन अ नटशेल वो रात निदा बहुत भारी थी हमारे ऊपर एज पेरेंट्स, एंड वी केम टू नो कि उसको सेप्टिक शॉक हुआ है, उसको सेप्सिस हो गया था, ठीक है. और सेप्सिस अगर हमारे यहाँ पे कुछ अगर हमारे लोग आए हुए हैं और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो सिर्फ उनको बताने के लिए, सेप्सिस इज अ वेरी इट्स अ डेडली डिजीज. और उसमें होता ये है कि आपकी यूजुअली जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो फाइट करता है उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट. तो सेप्सिस में वही जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, दैट रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे और वो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को अटैक करता है और उसमें बहुत खतरा होता है दैट द बॉडी ऑर्गन्स कैन फेल एंड इट कैन इवेंचुअली लीड टू डेथ. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि उस वक्त हॉस्पिटल में द डॉक्टर्स दे मेड अस प्रिपेयर्ड कि आप किसी भी शॉकिंग न्यूज के लिए, किसी बुरी न्यूज के लिए आप तैयार हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जिसको जिंदगी दी है वो उसने दी है. वी केम आउट ऑफ इट. शी वॉज इन NICU फॉर अबाउट 5 to 6 days. और उसके बाद डॉक्टर्स ने निदा बताया कि ऐसे बच्चे दे आर वेरी इजिली प्रोन टू इलनेसेस, वो जल्दी कैच करते हैं इन्फेक्शन. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ हर. आप ज्यादा लोगों को उनको ना दें, आप कोशिश करें सिर्फ आप उसके साथ रहें. सो वो फिर जो मेरे पर एक निदान एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन था ना, कि इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल. एक मेरी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल गुजरी, उसके बाद इमीडिएटली शी वॉज नॉट इवन अ मंथ ओल्ड, ऑल दिस हैपेंड. और फिर सिर्फ मैं उसके साथ होती थी. आई वॉज नॉट एबल टू इवन सीक हेल्प फ्रॉम एनी अदर, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था इसको आप ही उठाएं, आप इसको नानी, दादी, फुप्पो, चाची, खाला, किसी के हाथ में भी जितना कम कोशिश कर सकती हैं आप, इवन नॉट इवन द फादर. सो देन
वो यू कैन रिलेट कि वो क्या होता होगा. एंड फिर वो बहुत टफ टाइम था. खैर इनिशियली वो हुआ, उसके बाद फिर वो कोविड आ गया. सो यू नो थिंग्स दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप ऑन माई माइंड कि आई कैन नॉट गो आउट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई एम इन अ सर्टेन सिचुएशन विद माई चाइल्ड जिसकी मेडिकल कंडीशन इस वक्त ऐसी है. सो आई वॉन्टेड टू हैव अ वे आउट. सो उस वक्त बस वो कहते हैं ना अल्लाह ताला ने एक लिखी हुई होती है, एंड व्हेन समथिंग इज बाउंड टू हैपन इट डज. तो वहां पे उस वक्त ना जब एकदम से सब काम बंद हो गया, शॉप्स क्लोज हो गई, कोई काम नहीं चल रहा था, मार्केट्स वर क्लोज. सो देयर वाज अ फैमिली फ्रेंड ऑफ आवर्स जिनका ये अपना काम था रिलेटेड टू हाउस होल्ड और किचन एक्सेसरीज एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. तो उनका भी ऑब्वियसली शॉप वगैरह काम बंद हो गया. एंड एवरीबडी वांटेड टू, मतलब सबको तो कमाना है ना. आपको तो पता है कि ये जो काम है, जिनकी शॉप से उनकी तो डे टू डे अर्निंग्स होती हैं, वो तो उसी पे डिपेंडेंट होता है. सो देन ही जस्ट मैसेज्ड मी वन डे, और उन फैमिली फ्रेंड ने कहा कि भाभी यू हैव माशाल्लाह अ वेरी गुड सोशल नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, सो व्हाई डोंट यू ट्राई दैट. और जो स्टार्ट किया वो हमने ऐसे किया कि एक ईरान की ब्रांड है दैट्स वेरी मच फेमस बाय द नेम ऑफ लिमॉन. उनके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी फेमस. तो उन्होंने कहा उसकी बहुत डिमांड होती है पाकिस्तान में, कराची में, सो let's start from that. So I just picked up one product in one category, one manufacturer, one vendor, and it all began from there. Mm-hmm. Such a thrilling story, and yeah, like I always say, business start ही आपका किसी story से होता है. There is always a personal. जरूरी नहीं है कि हमारी पर्सनल स्ट्रगल्स लीड टू क्रिएटिंग द रेलेवेंट प्रोडक्ट, बट इट डज लीड अस समवेयर, बिकॉज हम सब जिन लोगों के स्पार्क होता है ना, जस्ट दे जस्ट वांट टू लाइक do something with their life and also create a positive impact in society. Like although at the time I'm pretty sure तुम उस वक्त ये नहीं सोच रही होगी कि मैं मतलब you were just thinking for a positive way for yourself, but you didn't know Exactly, कि हमारी story से exactly. कितने और लोग empower होंगे in It the was process. just a diversion of mind at that moment कि मैं कहीं बिजी हो जाऊं, मुझे कोई एक दूसरे का आउटलेट मिल जाए. उस वक्त सिर्फ ये प्लान था. उस वक्त तो था ही नहीं कि बिजनेस को आगे लेके जाना है और उसको एक्सपैंड करना है. एंड देन आफ्टर 4 years आई वुड बी हियर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. तो 4 years, इट ऑल huh? सीम्स लाइक Think about it. Like, साल से, I say this all the time कि सुपर वुमेन को रन करते हुए मुझे 6 साल से ऊपर हो रहा है, and I think this is the only thing that I have like literally stuck by, because I am also like हम जो creative लोग होते हैं ना, हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला होता है. We lack a lot of consistency and a lot of like that ठहराव ना हमारी जिंदगी में बहुत कम होता है. So ट्रू. this is one that platform that that has always been like one of the biggest things of my life. Like मैं जितना भी इससे दूर भागूं, it's that, like it's the नहीं center नहीं, of वापस everything. वो वापस आता है ना, बिल्कुल आता है नेता. सही है. वो साथ नहीं छोड़ सकता आपका. बिल्कुल हाँ. बिल्कुल. अच्छा, तो रबिया फिर बिजनेस स्टार्ट किया कोविड के बाद से, बेटी की तबीयत जब बेहतर हुई, एंड देन यू फाइनली रियलाइज्ड कि नहीं यार, मतलब देयर इज मोर टू लाइफ. then how, like Exactly. tell me your first ever, talk to me about your first ever business dealing, like जब ये जो अच्छा, तुमने बताया कि इनिशियली देखो मेरा हाँ. इतना हुआ कि काफी टाइम तक मैंने उसको भी सीरियस नहीं लिया. आई वाज जस्ट डूइंग इट ऑन अ व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप ना, बस उस पे ही चलता रहा. फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन पीपल स्टार्टेड लाइकिंग द प्रोडक्ट्स, तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा डू यू हैव अ फेसबुक पेज, डू यू हैव एन आईजी. तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो यार लेट्स मूव अ स्टेप अहेड और वो भी बनाते हैं. तो फिर खैर उसकी तरफ गई. फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले इनिशियली एक वेंडर के साथ काम किया, देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर ऑफ देम. तो इस तरह से जो था वो अल्लाह मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक एक करके स्टार्टेड एक्सपैंडिंग. हम्म. तो फिर जब तुमने इसको सोचा कि नाउ इज द टाइम, लाइक व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू डिसाइडेड कि ठीक है अब आई थिंक डिमांड बढ़, या वाज दिस द डिमांड कि लोग समझते थे कि पब्लिक पेज आपका होना चाहिए, बिकॉज लॉट आई एम श्योर लाइक जस्ट लाइक लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोडक्ट्स भेज रहे होते हैं, एंड वी सी लाइक ओ, बट वी probably not interested in buying at the same time, but we do want to know because वो प्रोडक्ट कुछ हमारी रेलेवेंट होता है, जैसे किचन प्रोडक्ट्स, होम बेस्ड प्रोडक्ट्स हो. तो was it the demand that you saw कि लोग कह रहे हैं इट पेज वाज को बना दो, या क्या? निधा, इट वाज बोथ. एक तो वो डिमांड भी थी, और फिर इनिशियली मैंने बताया ना वो देयर इज समथिंग व्हिच इज इनबिल्ट इन मी. आई थिंक वो शायद आई स्ट्रांगली एग्री टू इट कि वो शायद मेरे नाम का असर है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी राबिया को मैंने ऐसा जज किया है. दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी एम्बिशियस बाय नेचर. तो वो चीज मेरे अंदर हमेशा से थी. अच्छा, और एक और मैं बात बताऊं, व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय ओन फील्ड,
जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से आई थिंक 3 out of 4 were related to sales and marketing. तो वो मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग ही होती थी टेक्निकल प्रोडक्ट्स की। तो जब वो यहाँ जंप हुआ, सो आई कुड रिलेट दैट ओवर हियर। वो एक कनेक्शन बन गया। एंड आई अच्छा, और वो मैं हमेशा से एंजॉय करती थी। जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सेल्स एंड मार्केटिंग की मेरी जॉब थी, सो आई यूज्ड टू लव दैट। तो जब मैंने ये काम शुरू किया, और फिर वही ना, तब व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर क्लाइंट्स, आप उनकी कस्टमर की नीड्स को कैटर कर रहे हो। और अच्छा, बहुत दफा ऐसा भी होता है कि इवन द क्लाइंट इज नॉट श्योर व्हाट ही और शी वांट्स, एंड व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग देम, शोइंग देम द ऑप्शंस, तो उनको होता है अच्छा ये भी है। तो ये चीज मुझे लगता है वो चूंकि मैंने की भी थी, वो मेरे अंदर थी, वो मैं सीख चुकी थी। दैट वाज वन ऑफ माय लर्निंग प्रोसेस पहले। तो वो फिर यहाँ पे आके कैसा कनेक्शन बना कि शायद लोगों की भी डिमांड थी, और वो फिर मेरे अंदर से भी निकल आया। एंड आई थिंक दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि नाउ आई शुड consider it as a serious business and not just a time pass. Of course. I think, yeah, a lot of time जब women go into business, they do think कि, मतलब, कुछ clear picture आपको नहीं होती. And I think one of the reasons why a lot of small businesses that are very, new, they do struggle with this idea कि, मतलब, ठीक है, हमारी photography अच्छी है, but what's next? Like, we're not getting any orders. So it's because these conversations are like, not there. These conversations are supposed to guide young entrepreneurs who are just thinking of starting, because एक कोई blueprint है नहीं हमारे पास. Like, we do talk about a lot of conversation, there are a lot of groups, a lot that's there, of course, but I think जो ये face to face conversations है ना, इनकी बहुत कमी है, because बात से बात निकलती है. But just like I sent you a rough idea. I asked you for 3 things कि अपने challenge बताना, अपनी wins बताना, all of those things, कैसे start था. बट जब आप फेस टू फेस बात करते हैं, तब इतनी सारी चीजें इन द लाइट आती हैं. प्रोबेबली अपने आंसर से तुम भी शायद सरप्राइज हो रही होगी कि ओ, देयर वाज दिस स्टोरी दैट आई प्रोबेबली मिस्ड आउट ऑन. सो व्हेन यू शेयर अभी आपने बात बोली, मैं वहीं से एक और बात बोलनी चाहूंगी कि जैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो और लोग खवातीन है काम स्टार्ट करना चाह रही है, उनको वही होता है कि वी आर नॉट गेटिंग द नंबर ऑफ ऑर्डर्स दे थॉट दैट इनिशियली वुड कम अप विद. तो उसमें मैं एक बात बोलूं, डू नॉट वरी अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, स्पेशली इन द बिगिनिंग. पहले यू शुड स्ट्राइव फॉर मेकिंग योर मार्क. दैट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और मैं निदा उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोट करूं, तो माशाल्लाह से मेरे अब इतने अच्छे क्लाइंट्स बन गए हैं निदा, इतने मजे के इतने अच्छे क्लाइंट्स हैं कि मतलब आई हैव मेड माय न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम माय क्लाइंट्स. अब मुझे लगता है वो पुरानी दोस्तियां जो हैं वो खत्म हो गई हैं, और मेरे अब क्लाइंट्स में मेरे दोस्त बन गए हैं. ठीक है. और मैं भी एक छोटी सी एग्जांपल दूं उसमें निदा, कि जो मैंने बोला कि डू नॉट वरी अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स का आपको कितने इनिशियली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. जो एक ट्रस्ट लेवल होता है ना, वंस दैट इज गोइंग टू गेट डेवलप्ड, आप फिर देखेंगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने आपके काम में बरकत डालनी है. मैं अभी एक एग्जांपल कोट करती हूँ. देयर इज वन ऑफ माय रेगुलर क्लाइंट फ्रॉम मुल्तान. ठीक है. अच्छा, अब आपको पता है कि मतलब सोशल मीडिया इज लाइक सो मच कॉमन, अब हर एक के एक्सेस में है. अगर मेरी एक फील्ड है, दे जस्ट गोइंग टू टाइप इट ऑन फेसबुक और जो गूगल पर उन्होंने क्या, उनके पास एक लिस्ट ऑफ वेंडर्स, एक लिस्ट ऑफ सेलर्स ऑनलाइन आ जाएंगे कि हु आर वर्किंग इन द सेम फील्ड. सो नाउ एक्सेस इज रियली इजी फॉर एवरीबडी आउट देयर. तो अब वो मेरी क्लाइंट है, वो मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रही थी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. अच्छा, शी आस्क्ड मी प्राइस ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स. अच्छा, अब जो मेरे पास प्राइस थी वो जरा ज्यादा थी एज कम्पेयर टू उन्होंने जहां से देखी. तो उन्होंने कहा राबिया मुझे तो ये चाहिए और आपसे चाहिए. आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी, लेकिन अच्छा निदा, हर एक का थोड़ा सा, आई एम श्योर आपको भी ये बात पता है, और अगर कोई हमारे यहाँ पे कोई फेलो एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, कि हर एक का जो एक वर्किंग मेथोडोलॉजी है वो हर एक की डिफरेंट होती है. ठीक है. सो ऑब्वियसली उसमें प्राइसिंग एंड एवरीबडी वो सब वेरी करती है. तो मैंने उनको बोला कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये जो प्राइस रेंज है ना, वो मैं आपको ऑफर नहीं कर सकूंगी. इवन आफ्टर डिस्काउंट इट्स नॉट कमिंग सुटेबल फॉर मी. तो निदा, उनका ये कहना था राबिया मैंने लेना है तो आपसे लेना है, मैं कहीं और से नहीं लूंगी. अब आप मुझे बता दें कि आप इसमें खुद कितना कर सकती हैं. सो दैट्स द ट्रस्ट लेवल, बिकॉज शी नोज कि मैं जो उनको भेजूंगी दैट्स गोइंग टू बी द राइट प्रोडक्ट. उनके साथ
उसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी, या जो कुछ दिखाया कुछ, हमने भेजा कुछ। तो कहने का मकसद ये कि शुरू में प्लीज ट्राई टू बिल्ड दैट ट्रस्ट लेवल विद योर क्लाइंट्स, एंड इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट द नंबर ऑफ वेरी सून। To summarize that shortly, I think it's the connection that you build with your clients that एग्जैक्टली। eventually rises on top. जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे होते हैं एज अ कंज्यूमर, आपके लिए वो कनेक्शन या वो ट्रस्ट ज्यादा नेसेसरी होता है व्हेन यू लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट हाई एंड प्रोडक्ट्स, तो यूजुअली अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे सैमसंग का ही कुछ खरीदना है या मुझे डॉलिंस का ही कुछ खरीदना, दैट्स बिकॉज दे हैव built that trust level within the market, and obviously एग्जैक्टली। therefore ट्रू। लोग भले से कोई न्यू ब्रांड हो, भले से कोई उसकी बहुत ज्यादा टॉप नॉच फीचर्स हो, लेकिन आपका ट्रस्ट लेवल कहाँ पे होता है, that all boils down to that fact. And even if you are a small business, this practice is so essential because एक small business को उभरने के लिए there's like a few things, if you keep those things in check, देखें it's not rocket science starting an online business. It's literally your connections, your conversations, how you build your community within your audience, so that what it boils down to. अच्छा राबिया, मुझे ये बताओ कि सही है, जबरदस्त सीन तुम्हारा बिजनेस। बाय द वे, मैं राबिया की खुद इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ, एंड आई डोंट रिमेम्बर मैंने सबसे पहले क्या चीज खरीदी थी, बिकॉज मैंने इतनी सारी चीजें खरीद चुकी हैं। मुझे याद क्या है, यू बॉट दैट, मुझे एक फ्लावर लैडर था, याद है? क्या चीज यू टुक दैट लैडर फ्रॉम मी। क्या चीज ली थी? मुझे एक पॉट का लैडर नहीं था, फ्लावर लैडर था, वुडन का। Oh yes. एक वो Oh, वुडन लैडर that was था, एंड देयर वाज दिस बैम्बू शू बेंच। बैम्बू शू। हाँ, देयर वाज दिस बैम्बू शू उसको बेंच। असेंबली की हाँ, मैंने वेरी गुड रिमाइंडर, बल्कि वो ये रहा, आई शो हाँ। यू, ये रहा, बिल्कुल मेरे सामने ही रखा हुआ है, And जिस that पे मैंने was, बच्चों and की that was the beginning of my career as well. I still remember. I bought this ladder from Rabia maybe like 4 years ago, and it's still here. Exactly 4 ठीक years है, ago. इसमें मैंने फ्लावर पॉट्स नहीं रखे हुए, बट ये मेरे काम आ रहा है, दैट्स द पॉइंट। चलो, it's in your use ना, बस ठीक है। या बस मेरे यूज में। और जो जो बेंच ली थी मैंने शू वाली, वो भी नीचे मेरे दरवाजे के पास रखी होती है, सो बच्चों के लिए बच्चे के शूज हम उसमें रखते हैं। सो मैं राबिया की रेगुलर कस्टमर रह चुकी हूँ, एंड ये तो एक अलग बात है कि द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव बॉट फ्रॉम हर, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। सो दैट मीन्स के ऑब्वियसली राबिया वो खुद वो प्रोडक्ट्स नहीं बना रही, बट जहां से वो सोर्स करती हैं, ये जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है ना, ये इनकी बिजनेस डीलिंग शो कर रही है, इससे कि इनकी बिजनेस डीलिंग इतनी अच्छी है विद हर वेंडर्स, उनके कनेक्शंस इतने अच्छे हैं, द प्रोडक्ट्स दैट शी इज डिलीवरिंग आर टॉप नॉच। मैं हमेशा से इनसे खरीदती हुई आ रही हूँ, और इनफैक्ट अभी भी जो ईद गुजरी है, मैंने इनसे लास्ट मिनट चांद रात पे इनसे डिनर सेट डिलीवर करवाया है, जो कि बहुत स्ट्रेस में आके बेचारी ने डिलीवर करा। बट द पॉइंट इज के शी इज द पर्सन दैट आई कैन थिंक ऑफ, अगर मैं कहीं बाहर जाके नहीं खरीद रही खुद से, देन राबिया इज द पर्सन के मैं सबसे पहले पूछती, राबिया मुझे ये चाहिए, ये मिल जाएगा। सो शी इज दैट पर्सन। सो Thank अच्छा, you. we quickly had two comments, I'm just gonna quickly go, and किसी ने कोई बात बोली थी यहाँ पे। The wordy pharmacist is saying how to start any product based business from scratch when you don't have an audience, content, ads, influencer marketing, or anything else. Like, how do you take that first step, Rabia? Please shed some light. How to start any product-based business from scratch when you don't have an audience, content, ads, influence marketing, or anything else. देखिए, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया कि how did I start my own business, ठीक है? मेरे पास एक प्रोडक्ट थी, आई हैड दैट प्रोडक्ट इन माई माइंड। जैसे मैंने बताया, एक लिमोन है, एक ब्रांड है, उसके प्लास्टिक के हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं। सो इनिशियली आई मेड अ क्लोज्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स whom I knew that they would be interested in purchasing my products, or they would be, be helpful to me. वो जो आपका एक क्लोज एक नेटवर्क होता है, फ्रेंड्स का होता है, फैमिली का होता है। सो इनिशियली यू स्टार्ट फ्रॉम देयर, देन यू वर्क ऑन डेवलपिंग योर ओन पेज। आप उस पे जाएं, आप उस पे काम करें। एड्स वगैरह दे तो बहुत आगे की बात है जाके, लेकिन फर्स्ट इनिशियली यू हैव टू चूज अ प्रोडक्ट, एंड वंस यू डन विद इट, सो आई वुड रिकमेंड कि आप जरा अपना एक closed a group बनाए, WhatsApp business group, and then create your social media pages and start promoting your products on different pages. जिस तरह से निदा आपका है माशाल्लाह से, it's a platform of more than 60,000 super women. So इस तरह के और भी हमारे पास pages हैं who support the startups. So start from there. और देखिए, जहां तक बात ये आती है ना कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करें, उसके ऊपर अ लॉट ऑफ दिस
कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैं क्लोथिंग बिजनेस में जाना चाहती हूँ तो बहुत ऑलरेडी इतने सारे कंपेटिटर्स हैं, मैं स्कार्फ्स को स्टार्ट करना चाहती हूँ, या मैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मतलब यूज कर एज अ बिजनेस करना चाहती हूँ, उसके ऑलरेडी इतने पेजेस मौजूद है, मतलब हाउ विल आई स्टैंड आउट? सो इन द स्टार्टिंग, लाइक माय मैसेज टू ऑल ऑफ दोस पीपल हु वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस विद एनी कॉमन प्रोडक्ट, देखें, जब हम कोई अपने 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 आप को ना एज अ कस्टमर आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ के जब कोई एक ऐसा स्पॉन्सर्ड एड मैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देखती हूँ या देखता हूँ, और ऑल्दो उस प्रोडक्ट की मुझे जरूरत नहीं होती, बट द वे इट इज मार्केटेड आई फील लाइक ओ ये मेरे पास होना चाहिए, एंड इंस्टेंटली हम वो चीज अक्सर परचेज भी कर लेते हैं, इफ नॉट लाइक इफ नॉट आफ्टर थिंकिंग ओवर दोस थिंग्स, बट वी डू, लाइक आई एम दैट पर्सन, लाइक आई वुड मुझे लगेगा कि नहीं मुझे जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी खरीद लूंगी. सो द पॉइंट फॉर दैट इज के don't think about whether that product is super common in the market or not. Think about how unique your marketing strategy should be, because when जो marketing की जो एक शुद्ध जो एक definition है ना, वो ये है कि you are creating a need for a product. That's like the core of marketing. It's not कि marketing a product like आप एक प्रोडक्ट को मासेस तक पहुंचा रहे हैं, नहीं, आप उस प्रोडक्ट की नीड पहले क्रिएट करते हैं अपनी ऑडियंस में. दैट्स द कोर ऑफ मार्केटिंग. And then, you should also have a unique selling point. ये that's a must. अगर वो आपने बिजनेस के अंदर इंटीग्रेटेड है, देन नो मैटर आपके कितने कंपेटिटर्स हैं जो एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू बेडिंग, लिनन, ज्वेलरी, क्लोथिंग, हाउस होल्ड, टॉयज, यू शुड हैव दैट. वंस आपने अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया ना, दैट्स ऑल्सो अ विन विन सिचुएशन. इट इज. एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब बहुत लेमैन और बहुत आसान लफ्जों में ये कि कोई ऐसा पॉइंट जो सिर्फ आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करता हो इन फ्रंट ऑफ अदर बिजनेसेस. तो जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट ऐसा हो. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मैं कपड़ों का काम करती हूँ और मेरे पास हर तरह के डिजाइन ड्रेसेस होते हैं, लेकिन मैं मतलब मैं शादी ब्याह वाले कपड़े डिजाइन करती हूँ, फैंसी ड्रेसेस में डिजाइन करती हूँ, लेकिन मेरी यूनिक सेलिंग पॉइंट या मेरा यूएसपी ये है कि मैं जो कपड़े डिजाइन करती हूँ वो ऐसे फैब्रिक में है कि गर्मी में आप फैंसी कपड़े पहनेंगे लेकिन फिर भी आपको गर्मी नहीं लगेगी. इट्स जस्ट वन सिंगल एग्जांपल. या वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है आपका, या आपका वो प्रोडक्ट, या तो वो आपका सर्विस ओरिएंटेड यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है. यानी द वे योर सर्विस इज लाइक, आप जैसे आप अपने सर्कल में नोन है या अपने कस्टमर्स के दौरान नोन है. यानी मैं बोलूंगी कि नहीं यार, रात का 2 भी बज रहा होगा, मतलब although this is not something I recommend, but I'm just saying रात को 2 भी बज रहा होगा और मेरी कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, सेलर ने मेरे क्वेश्चन को एड्रेस किया, भले प्रोडक्ट डिलीवर किया नहीं किया, बट इट्स जस्ट दिस के इट्स जस्ट लाइक एन एग्जांपल. सो खैर, दैट्स दैट. देयर इज अ लॉट टू डिस्कस इन दिस एरिया. एंड राबिया, मुझे ये बताओ कि अदर देन ऑल ऑफ दिस, आपको अपने बिजनेस में सो फार से क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपने बिजनेस में, लाइक कीप द कॉन्वर्जेशन रिलेटेड टू यू एंड योर बिजनेस ओनली, एंड talk to me about how was your life like post running the business. Like अब तुमने decide कर लिया, ठीक है, अब मैं am going fully into this. I know मेरे लिए जॉब करना मुझे 9 to 5 के लिए it's not possible. So घर की लाइफ, बच्चे छोटे, how did you like manage that? This is one of the biggest challenge, Nida, that you've just said. Separating your work and family life, it's very crucial. और क्योंकि निदा ये जो डेली हाउस होल्ड चोर्स हैं, अब आजकल तो मदर्स का आई थिंक दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज कम्पेयर टू द previous times. They now have to even do the pick and drop of their kids from school. और उन सब में अगर मैं अपनी बात करूं, then I have to work around the sleep times of my children, especially of my younger one. तो ये इन सब चीजों में एक डिस्ट्रैक्शन होती है जो कि बिजनेस में आती है. और अक्सर ये मेरे साथ होती है, इफ आई एम ऑन अ कॉल विद माय क्लाइंट, ठीक है, कोई भी क्वेरी है, डिस्कस हो रही है XYZ, और पीछे से इफ सडनली योर 4.5 year comes around and she's nagging you, yelling at the back. So वो एक कभी थोड़ी सी सिचुएशन बनती है जो कि एम्बैरेसिंग होती है. बट देन अगेन मैं बोलूंगी आजकल क्लाइंट्स आर ऑल्सो वेरी, हम अक्सर अंडरस्टैंडिंग वो बहुत माशाल्लाह है. एंड देन दिस से कि नहीं, गो एंड लुक आफ्टर योर यंगर वन, लुक आफ्टर योर किड्स, वी कैन टॉक लेटर. तो ये है कि ये एक जरा सा थोड़ा सा एक जगल करना, दैट इज अ चैलेंज. और इसको मैं थोड़ा सा मैनेज इस तरीके से करती हूँ निदा, जैसे अभी मैंने ये बोला कि आई नो व्हाट आर द स्लीप टाइम ऑफ माई चिल्ड्रन, ठीक है.
अब जैसे अभी राइट नाउ आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू और हमारी बीच में बात होती, इफ यू नो वी कैन जस्ट एक्सटेंड द टाइमिंग्स अ लिटिल बिट, एंड आई टोल्ड यू नो 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 प्लीज डोंट डू दैट क्योंकि मेरी से छोटी वाली बेटी यू नो शी इज हैविंग अ शॉर्ट आफ्टरनून नैप, तो एंड देन शी गेट्स अप बाय 5:30 to 6, so ये यू हैव टू यू नो वर्क अराउंड योर टाइमिंग्स, वो थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. So I think that is one of the challenges which I think not only I have to face, लेकिन मेरे ख्याल से और बहुत सी mothers को करना पड़ता होगा. Their home based business, and I'm sure you're one of them. On top of it. Yeah. एक ये होता है. अच्छा, दूसरा थोड़ा मेरे साथ जो एक और challenge है, that is I live in a joint family setup. It's not nuclear. So lack of space when it comes to stocking my products. So वो भी एक issue जो है वो जरा हमें face होता है. That is one of the challenges that I have to face. And number 3, I think, which is first and foremost, is networking, Nida. क्योंकि जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल और ये फैमिली लाइफ एंड यू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमें देखनी होती हैं, एंड देन जस्ट टू मेक इट शॉर्ट, मेरे हस्बैंड की भी थोड़ी निदा नेचर ऑफ जॉब ऐसी है दैट ही इज मोस्टली ट्रैवलिंग फॉर 2 to 3 days इन अ वीक. तो फिर वो क्या होता है कि वो जो एक फादर की एब्सेंस होती है वो भी साथ मुझे एक बच्चों के लिए करनी पड़ती है, उस एक यू नो एक वॉइड को भी फिल करना पड़ता है. तो उसमें फिर ये होता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज जो मिस हो जाती हैं, and that I really regret. सही, Yeah. बिल्कुल सही कह रही हूँ. ऐसा ही. या कैन यू हियर मी? Okay. हाँ, now I can hear you. ओके. और इसमें निदा, अभी मेरे ख्याल से किसी ने कुछ कोई कमेंट किया था, मैं पढ़ रही थी. नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, निदा, क्योंकि बिजनेस नेटवर्किंग दैट यू आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर योर बिजनेस, और इसके अलावा आप न्यू ट्रेंड्स सीखते हैं, आपको मतलब बहुत से इनसाइट्स मिलती हैं, यू रिसीव वैल्यूएबल मेंटोरशिप. So that is, I think, a very important factor if you want to grow your business as well, and that is one of the challenges too. जो कि फेस करना पड़ता है. Mentors, yes, we don't have enough business mentors. Like, we do have people who with marketing knowledge, but we don't have prior business women who are मतलब business के लिए तो you need somebody who has done business in the past, service based or product based. I think उसकी बहुत ज़्यादा कमी है. अच्छा, I know कि तुम्हारे पास भी कम time है, and I also have another meeting aligned. But yes, talk to me what your message would be to anybody who's looking to start a business in 2024. Like, क्या बोलोगी उन लड़कियों को जो सोच रही हैं और जो घबराती हैं थोड़ा सा, बिकॉज हमें सबसे ज्यादा उनको मोटिवेट करने की जरूरत है सबसे, इफ एनीथिंग. सो व्हाट वुड बी योर मैसेज? घबराना नहीं है. घबराना तो बिल्कुल नहीं है. एंड देन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, देखिए निदा, सम थिंग्स दे डोंट वर्क आउट राइट ऑन द फर्स्ट ट्राई. ठीक है, अगर आप ये समझेंगे कि ये चीज मैंने करनी है, आपने माइंड बना लिया है, एंड देन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, वो होता भी है ऐसा, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, बट एट टाइम्स इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एज वेल. ठीक है, सो what you need to do, you have to be willing to try time and again, and until you finally do succeed. आप इस चीज को अपने जहन में नहीं डालें कि ये मुश्किल है या ये नहीं हो सकता या आई एम नॉट destined for that. No. जो निदा रोड टू सक्सेस है ना, उसमें आपको मिसहैप्स, मिस्टेक्स, लॉसेस सब नजर आएंगी. और ये हमारे साथ भी हुआ है. इट्स नॉट दैट कि हम यहाँ पे ऐसे ही पहुंच गए हैं. ठीक है, हमने भी बहुत से फेलियर्स देखे हैं, हमने भी बहुत से सेटबैक्स, शॉर्टकमिंग्स हमें भी हुई है, और उनसे आज हम लर्न करके नाउ आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू, बस यू शुड नो दैट वेयर यू वांट टू गो, एज लॉन्ग एज यू डोंट लूज साइट ऑफ योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन. ऐसा ही है बिल्कुल. बिकॉज मैं हमेशा ये बोलती हूँ सबसे कि सबसे जो एक वो एक फीलिंग, एक फैक्टर है ना हमारे पास कि व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन. द वर्स्ट दैट कैन हैपन, लाइक यू विल फेल. मतलब that's that. Exactly. मतलब that's literally the worst that can happen. मतलब क्या होगा कि आप फेल हो जाएंगे, बिजनेस या ऑर्डर नहीं आएगा या रिकग्निशन नहीं मिलेगी. बट दैट्स लाइक ये अगर इसी मसले की वजह से if you feel like you're not taking that first step, then you should understand कि जब हम कोई चीज एक्नॉलेज कर लेते हैं ना, इंटरनलाइज कर लेते हैं इस चीज को कि ये होगी तो भी ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है. तो जब हम उस फेज के अंदर आ जाते हैं ना, मेंटली स्पीकिंग,
तो फिर it's easier for us to take the first step anyway. And it's all about trial and error at the end of the day. Or at the end of the day. Exactly. And you know, like बिल्कुल. it's all about. I mean, ठीक है. It's one thing कि you know whether you start a business or not, but भले बिजनेस हो या नहीं हो, या कोई भी ऐसी चीज हो आपकी लाइफ में, लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने फियर्स को जब तक एक्नॉलेज, मतलब भागे नहीं कि you know, मतलब I am Exactly. very introverted and I don't think I can deal with people, I don't feel comfortable doing this and etc. These are all the fears, right? These are all your fears talking. But when you acknowledge those fears कि हाँ यार this exists, this is an issue with me, it's probably a toxic Exactly. trait, but I know it's there and I'm willing to work on it. And you know, you have to have that attitude you know, eventually. So that's that, guys. I am again thankful to everybody who tuned in, people who posted their comments. So much thanks to Rabia. One more important note before we Thanks to go. you, Nida. Sorry for cutting you down. I'm forever grateful for your support. I mean, since the beginning, हमने जैसे भी बात की थी from your very first order, and then when I got the call from you just a day before when you were, you know, taking us to the morning show. और उसमें मुझे हमेशा लगता है, मुझे एक बंदा है ना जो मैं हमेशा कहती हूँ मुझे पुश की जरूरत नहीं है. आई ऑलवेज से दैट, मैं खुद ही अपने लिए काफी हूँ. बट आई थिंक यू आर द वन बिहाइंड माय बैक हु एक्चुअली पुशेस मी कि कम ऑन लेट्स डू इट. So, nahin, thank you so much, Nida. And I think you've taken the crown of Superwomen of Pakistan. Thank you so much. ऐसी बात नहीं है. I think Thank you. for me, it's not about owning the or wearing the crown. It's literally about fixing other women's crown, and that's what my goal has always been. And मैं बस यही कहना चाह रही थी कि the goal for this podcast is, it may look like a बहुत ही random सी live conversation थी, but I am honestly hoping to do this every day, if not every day, then every alternate day. And फॉर्मली भी हम राबिया के साथ एक बहुत अच्छा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे so that we can go live on Facebook at the same time. But yes, this was it for today. Thank you to Rabia for sharing your amazing and brilliant story. This podcast is going to be available on my Instagram feed, and you guys are more than you know welcome to share it. Please do repost it and stories पे, या उन लड़कियों के साथ शेयर करें जिनको आपको पता है जिनके अंदर एक पोटेंशियल है, and who kind of like you know need a little push from our back, because it's our duty to push the women with potential, and it's literally our duty. अगर हम you know अपनी story पे बैठे हुए ऐसे ही just like that, it has to inspire others. I think हम सबको you know अल्लाह ने किसी मकसद के लिए भेजा है दुनिया में, and अगर हमने हमारी लाइफ में अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी रही है या कोई ऐसा लेसन रहा है जिससे हमें at the end of the day Allah ने empower किया, so I think it's our duty to empower others as well with the same you know with our stories. So keep telling the right stories, keep inspiring, and thank you so much to the audience and Rabia for today. Thank This you. was Women Who Build. Rightly said, rightly put the name. बड़ा मजेदार सा नाम है इस पॉडकास्ट का कि Women Who Build. अब वो बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, अपनी लाइफ बिल्ड कर रही हूँ, कुछ भी बिल्ड कर रही हूँ. So you know हमारा मकसद है कि women who are building, constantly building, you know, building families, building opportunities, so much that can you know come in under this. So yeah, thank you for everybody, thank you to everybody tuning in, and let's connect soon inshallah. You'll probably see me live more often on this space. Let's connect soon again. Allah Hafiz. Nafis. Allah Hafiz.